friends, welcome to this Android tutorial. In this Android tutorial, we will learn about OOPS concept. So first we will see what is OOPS concepts. So let's get started. OOP is a programming concept that work on the principle of abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. OOP जो प्रोग्रामिंग है वो इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है जो कि एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म है. First we will see what is OOP, then we will proceed with these terms. Now let's see OOPS concepts. The basic concept of OOP is to create objects, reuse them throughout the program and manipulate these objects to get results. OOP का बेसिक कंसेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और सेम ऑब्जेक्ट को रीयूज करना पूरे प्रोग्राम में और ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना कोई रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए. सो OOP concept mainly based on objects. So let's see what is object. Objects. Object is a bundle of data, state or string and its behavior often known as method. Object data और behavior का bundle है. Now let's understand state and behavior with a simple example of Java program. हमारा object है employee, हमारा state है name, age, address. Behavior है gross salary and basic salary. Now let's see this example. Public class employee, string name, string age, string address. ये तीनों हमारे state हैं. Now these two methods, void gross salary, void basic salary, are our behavior. So in this example we saw the state and the behavior. Now let's see abstraction. What is abstraction? Data abstraction is defined as the property by the virtue of which only the essential details are displayed to the user. The trivial or the non-essential details are not displayed to the user. That means abstraction is defined as hiding. It means कि हम यूजर को खाली जितनी डिटेल्स जरूरी है उतनी ही शो करेंगे, बाकी की डिटेल्स यूजर से हाइड कर देंगे. Abstraction is nothing but the quality of dealing with ideas rather than events. It basically deals with hiding the internal details and showing the essential things to the users. Abstraction means कि खाली ideas से deal करना है, events पे focus नहीं करना है. Abstraction means to show what is happening and not how it is happening. And this with a simple example. When you get a call on mobile, you get an option to either pick it up or just reject it. But in reality, there is a lot of code that runs in the background. So here you don't know the internal processing of how a call is generated. That's the beauty of abstraction. अगर हमें मोबाइल पे एक कॉल मिलता है तो हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं उसमें, either to pick it up or to reject it. बट रियलिटी में क्या होता है कि उसमें बहुत सारा कोड रन होता है जो कि हमें नहीं पता चलता है कि कितना कोड रन हो रहा है बैक में. और ये इंटरनल प्रोसेसिंग किसके कारण होती है? एब्स्ट्रैक्शन के कारण. एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए दो वेज हैं हमारे पास में, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और या तो फिर इंटरफेस. दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. Let's see abstract class. Abstract class contains the abstract keyword. If you make the class abstract, it cannot be instantiated. You cannot create an object of an abstract class. Also, an abstract class can contain abstract as well as non-abstract method. You cannot achieve 100% abstraction using an abstract class. Abstract class जो होती है उसमें abstract keyword होता है. If you make the class abstract, it cannot be instantiated. यानी अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं तो उसको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसका कहीं भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसमें दोनों टाइप की मेथड्स क्रिएट हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. और हम एब्स्ट्रैक्शन
जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कभी भी 100% पूरा कंप्लीट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नहीं मिलता है हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अ सिंपल एग्जांपल। यहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे एनिमल। इसमें दो मेथड्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हमारी जो मेथड होगी वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, एनिमल साउंड नाम की मेथड क्रिएट करेंगे। सेकेंड जो होगी हमारी रेगुलर मेथड होगी जिसका नाम देंगे स्लीप। इसमें हम प्रिंट कराएंगे पिग इज स्लीपिंग। अब हम एक क्लास बनाएंगे पिग जिसको एक्सटेंड करेंगे हमारी जो एनिमल क्लास थी उससे, और उसके बाद में हमारी जो एनिमल क्लास में जो मेथड है वो इस क्लास में ओवरराइड होगी जो कि थी एनिमल साउंड। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, इसीलिए ये यहाँ पे ओवरराइड होगी। और हम एक क्लास बनाएंगे माय मेन क्लास। इसमें हम मेन मेथड लेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसमें हम पिग जो हमारी क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और पिग वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में हम दोनों मेथड्स को कॉल करेंगे। सबसे पहले कॉल करेंगे एनिमल साउंड मेथड को और फिर कॉल करेंगे स्लीप मेथड को। और फिर हम जब ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा द पिग सेज वी, जो कि हमने एनिमल साउंड में प्रिंट कराया था पहले। हमारी एनिमल साउंड जो मेथड है उसमें देखिए हमने प्रिंट कराया था पिग सेज वी। और हमने जो माई पिग डॉट स्लीप जो यहाँ पे मेथड कॉल की है, तो हमने स्लीप मेथड में क्या कॉल करवाया था, पिग इज स्लीपिंग। तो पिग इज स्लीपिंग, तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। Interface. An interface in Java is a collection of abstract methods and static constant. As you might know, in an interface, each method is public and abstract, but it doesn't contain any constructor. Along with abstraction, the interface also helps to achieve multiple inheritance in Java. You can achieve 100% abstraction using interface. An interface is a collection of abstract methods and constants. एक इंटरफेस है जो कि कलेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का और स्टैटिक कांस्टेंट्स का। और जो एज यू माइट नो इन एन इंटरफेस ईच मेथड इज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस में जो भी मेथड होती है वो पब्लिक होती है और एब्स्ट्रैक्ट होती है, बट इट डजंट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं कोई भी। अलॉन्ग विथ एब्स्ट्रैक्शन द इंटरफेस ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन में। यू कैन अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस में हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन मिलता है। बेसिकली इंटरफेस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेथड विथ एम्प्टी बॉडीज। इंटरफेस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेथड्स विथ एम्प्टी बॉडीज, मतलब यहाँ इस इंटरफेस में जितनी भी मेथड्स होती हैं उनकी वो सब एम्प्टी बॉडीज की होती हैं। Now let's see the example. Interface my interface final int a is equal to 10 void display। एक इंटरफेस बनाना है माय इंटरफेस नाम का, फाइनल टाइप का इंट वेरिएबल लेना है ए जिसकी वैल्यू देनी है 10। एक मेथड बनाएंगे void display इंटरफेस में। अब एक क्लास बनानी है टेस्ट क्लास और उसको इम्प्लीमेंट करना है माय इंटरफेस से। void display जो मेथड हमने बनाई थी यहाँ पे वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी। उसमें हमें देना है system.out.println geek, ये मैंने प्रिंट कराया है यहाँ पे। अब हमने एक मेन मेथड बनाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, जिसमें हमने जो टेस्ट क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट क्लास टी डॉट डिस्प्ले। हमने जो डिस्प्ले मेथड है उसको यहाँ पे कॉल किया है टी, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट टेस्ट क्लास का। और हमने जो हमने कुछ प्रिंट कराया यहाँ पे system.out.println, और हमने ए की वैल्यू जो थी वो प्रिंट कराई यहाँ पे, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 10 सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First we will see what is encapsulation. Encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data variables and data acting on the data methods together as a single unit. In encapsulation, the variable of a class will be hidden from the
other class and can be accessed only through the methods of their current class. Therefore, it is also known as data hiding. एनकैप्सुलेशन का बेसिक मीनिंग है डेटा को हाइड करना, किसी भी क्लास के लिए वेरिएबल्स को हाइड करना और वेरिएबल और मेथड्स के थ्रू उन वेरिएबल्स को असेस करना, और इसी को ही डेटा हाइडिंग कहते हैं. To achieve encapsulation in Java, declare the variables of the class as private, provide public getters and setter methods to modify and view the variables values. मतलब कि वेरिएबल्स जो है उनको प्राइवेट डिक्लेयर करना है और जो गेटर सेटर मेथड्स बनाएंगे उनको पब्लिक डिक्लेयर करेंगे. Now let's see next slide. Advantages of encapsulation. First is data hiding. The user will have no idea about the inner implementation of the class. It will not be visible to the user that how the class is storing the values in the variables. He only knows that we are passing the values to a setter method and the values are getting initialized with that value. अब डेटा हाइडिंग का मतलब है कि यूजर्स को खाली ये पता चलेगा कि वैल्यूज सेटर मेथड के थ्रू वेरिएबल्स को असाइन हो रही है, पर क्लास के इनर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे स्टोर हो रही है ये पता नहीं चलेगा. Increased flexibility. We can make the variables of the class as read only or write only depending on our requirement. If we wish to make the variable as read only, then we have to omit the setter methods like set name, set age, etc. from the above program. Or if we wish to make the variable as write only, then we have to omit the get methods like get name, get age, etc. from the above program. अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हम वेरिएबल्स को रीड ओनली या राइट ओनली बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. अगर रीड ओनली बनाना है वेरिएबल्स को तो सेटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर राइट ओनली बनाना है वेरिएबल्स को तो गेटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. फिर आता है रीयूजेबिलिटी. Encapsulation also improves the reusability and easy to change with new requirements. हमारे कोड की reusability भी बढ़ती है, उनकी वेरिएबल्स और उनके गेटर सेटर्स को और भी क्लासेस में हम यूज कर सकते हैं. टेस्टिंग कोड इज इजी. एनकैप्सुलेशन कोड इज इजी टू टेस्ट फॉर यूनिट टेस्टिंग. एनकैप्सुलेटेड कोड की यूनिट टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ स्मॉल एग्जांपल. यहाँ एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन डेमो. एक स्ट्रिंग बनाया है जिसका नाम है emp नेम और एक इंट बनाया है emp एज. अब उसके गेटर सेटर्स क्रिएट किए हैं. गेट emp नेम, गेट emp एज, सेट emp एज, सेट emp नेम. गेटर सेटर्स बनाने के बाद में एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम है एनकैप्स टेस्ट. इसमें एक मेन मेथड क्रिएट करना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स. इसमें एनकैप्सुलेशन डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों की सेटर मेथड को कॉल करेंगे. सेट emp नेम और सेट emp एज और दोनों की वैल्यूज सेट करेंगे. नेम सेट करेंगे मारियो और एज सेट करेंगे 32. दोनों को प्रिंट कराना है यहाँ पे. एम्प्लॉय नेम ऑब्जेक्ट डॉट emp नेम और एम्प्लॉय एज ऑब्जेक्ट डॉट emp एज, और इसका आउटपुट मिलेगा हमें. हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा emp नेम मारियो और emp एज 32, और ये हमारा आउटपुट रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल सी इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म in part 2. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.